ملکی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری، 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,09,000 کی تاریخی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ معاشی استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ انتہائی ضروری، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس، تجارتی اور معاشی شعبے میں ترقی کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ، وزیراعظم کی بلوچستان میں سرحدی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، ملائیشیا کے لیے چاول کی برآمدات بڑھانے سے متعلق ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ، خصوصی اقتصادی زونز کو فعال کیا جائے گا، گندم، کپاس، کماد، چاول، خوردنی تیل سمیت بڑی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، مالیاتی مسائل کا دیرپا اور منظم حل ناگزیر، نجی شعبہ معیشت کی قیادت کرے، حکومت سہولت کار کا کردار ادا کرے گی، مشکلات کا شکار اداروں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ، ملٹری کمانڈرز کا غیر ملکی وفود کے دورے کے دوران اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار، بیرونی عناصر کی مدد سے کیے گئے پروپیگنڈے کی مذموم کوششیں قطعاً کامیاب نہیں ہوں گی، ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا سرینا چوک انٹرچینج منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ، محسن نقوی نے مدت سے قبل منصوبے کی تکمیل کے لیے سی ڈی اے کو ٹاسک دے دیا، منصوبہ 10 ماہ کی بجائے 3 ماہ میں مکمل ہوگا، تعمیراتی کاموں کی خود نگرانی کر رہا ہوں، میگا پروجیکٹ کی تکمیل سے ٹریفک کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل ہوں گے، وزیر داخلہ۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی ملاقاتیں، ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پارٹی کے تنظیمی امور پر تفصیلی گفتگو، پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان، انتشار کی سیاست ملک دشمنی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ملکی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی رہے گی، عبدالعلیم خان۔ 1971 کی جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، مہمان خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ لاہور گیریئن میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، تقریب میں میجر شبیر شریف شہید کی ہمشیرہ کی بھی شرکت۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر نے 1971 میں دشمن کا جوان مردی سے مقابلہ کیا، مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید کی جرأت اور بہادری قابل تقلید ہے، پوری قوم کو آپ جیسے بہادر افسران پر فخر ہے، صدر آصف علی زرداری کا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے 53ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر جرأت و بہادری کی عمدہ مثال، شہید کا دفاع وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید، آپ کے جذبہ حب الوطنی اور فرض شناسی نے دشمن کی عددی برتری کو خاک میں ملا دیا، مجھ سمیت پوری قوم کو شبیر شریف شہید اور آپ کے اہل خانہ پر فخر ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا میجر شبیر شریف شہید کے 53ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیف آف اور افواج پاکستان کا قوم کے بہادر بیٹے میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت، شہید کی غیر معمولی جرأت، غیر متزلزل لگن اور عظیم قربانی، حب الوطنی اور عسکری مہارت کے اعلیٰ ترین نظریات کی مظہر، آپ نے 6 دسمبر کو دشمن کے کئی حملوں کو بہادری سے پسپا کیا، پوری قوم اپنے بہادر ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔
تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضمانت ہے۔ ملکی ترقی میں نوجوانوں کی فعال شمولیت ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان ہی قومی تعمیر کے عمل میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ایڈورڈ کالج پشاور میں تقریب سے خطاب۔ شر انگیز پروپیگنڈے میں ملوث مزید 7 ملزمان قانونی شکنجے میں۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور جھوٹے بیانیے پر مزید 7 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈا اور جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے تھے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گزشتہ روز 12 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، جن کی شناخت کر لی گئی۔ ذرائع خیبر پختونخوا میں حالات صوبائی حکومت کے قابو سے باہر۔ امن کے لیے بلائے گئے کل جماعتی کانفرنس میں PTI کا شرکت نہ کرنا افسوسناک۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی سے لڑنے کے بجائے وفاق سے لڑنے میں مصروف ہے۔ بانی PTI عدالتوں کا سامنا کریں۔ PTI سوشل میڈیا پر نفرت اور جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ بابری مسجد کی شہادت کو 32 سال مکمل۔ 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد کو شہید کیا۔ واقعے کے بعد فسادات کے نتیجے میں 2000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ 2009 میں جسٹس منموہن سنگھ کی تحقیقاتی رپورٹ میں BJP رہنماؤں سمیت 68 افراد کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ 9 نومبر 2019 کو بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی شہادت میں ملوث تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ افسوسناک واقعہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی اور اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھا۔ ہیومن رائٹس واچ فلسطینیوں کی نسل کشی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر رات بھر اسرائیلی بمباری۔ کمال عدوان ہسپتال پر بمباری سے طبی عملے اور مریضوں سمیت متعدد افراد شہید۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں قابض فورسز کی فائرنگ، 2 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں فائرنگ سے ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کا کارکن بھی شہید۔ مغربی کنارے کے علاقے نابلس میں قابض فوج کے حملے میں فلسطینی شہری شہید۔ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملہ، 5 افراد زخمی۔ بنوں میں پاک فوج کے تعاون سے علماء کرام کا گرینڈ امن جرگہ منعقد۔ علماء کرام کا امن اور فتنہ الخارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان۔ علماء اور مشائخ نے علاقے میں تعلیم، صحت، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا کی جھوٹی مہم کا پردہ چاک۔ اسلام آباد کا پولیس پر پشتونوں کو ہراساں اور تنگ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ پشتون کمیونٹی کا اسلام آباد پولیس پر اعتماد کا اظہار۔ پولیس کے خلاف چلنے والی جھوٹی مہم تفریق پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پولیس افسر۔ گرین گوادر اور موسمیاتی تبدیلی سے آگاہی۔ ساحلی شہر گوادر میں 3 روزہ تعلیمی میلے کا انعقاد۔ 50 سے زائد تعلیمی اداروں نے حصہ لیا۔ کتاب گھر میلہ اور بچوں کی بھرپور شرکت نے میلے کی رونق بڑھا دی۔ آرٹ کارنیور کے عنوان سے مقابلوں میں بچوں نے اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا۔ متحدہ عرب امارات میں انڈر 19 ایشیا کپ دبئی میں پہلے سیمی فائنل میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری۔ شارجہ میں دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور سری لنکا مد مقابل۔ فائنل اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ ہانگ کانگ میں ورلڈ اسکواش ٹیم چیمپئن شپ 2024 شرکت کے لیے پاکستان اسکواش ٹیم چین روانہ۔ 9 سے 15 دسمبر تک کھیلے جانے والے ایونٹ میں 26 ممالک شرکت کریں گے۔ چیمپئن شپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ 9 دسمبر کو کھیلے گا۔ اور انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ فولہم نے برائٹن اینڈ ہاؤ البیون کو 1
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ उस्मा चौधरी और मैं हूँ मनाजिर हुसैन। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि तरक्की की जानिब गामजन होती मईशत के लिए आज भी बेहतरीन दिन है। मार्केट का आगाज होते ही मुस्बत रुझानात सामने आने लगे। मार्केट एक बार फिर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे। ज़मीर, आगाह कीजिएगा कि मुल्क के माशी हब से मईशत की तरक्की क्या खबर है और मार्केट के क्या रुझानात हैं? जी, मुल्की मईशत के लिए एक और बेहतरीन आगाज़। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1240 पॉइंट्स का भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 1,09,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,09,478 पर भी पहुंची। मार्केट की अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो पिछले तकरीबन 7 दिनों में मार्केट में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है। पिछले हफ्ते तकरीबन थर्सडे को मार्केट 1 लाख का जो हद था अबूर किया था, उसके बाद सिर्फ तकरीबन 7 दिनों में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने 9,000 की जो लिमिट है ये भी क्रॉस की है, जो कि मार्केट की पोटेंशियल को जाहिर करता है। एक और जो मेन डेवलपमेंट है मुल्क की मईशत के हवाले से वो सऊदी अरब की जानिब से जो पाकिस्तान को $3 अरब दिए गए थे, उसमें जो एक साल की तौसी की है, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे रिजर्व्स में भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 62 करोड़ का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद हमारे रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन 16 अरब और 62 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुके हैं। स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स मौजूद हैं वो भी 12 अरब की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगले साल मार्च में शायद ये नंबर्स आएंगे हमारे पास, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज और हमारे जो रेमिटेंसेज में इंक्रीज की वजह से हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो फौरी तौर पर जो है 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे मुल्क की जो मौशी अशारी हैं वो तमाम मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने जो पॉलिसीज दी हैं उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको इसी तरीके से जारी रखा जाएगा तो मौशी इस्तेकाम बहुत जल्द हासिल होगा। जी, शुक्रिया ज़मीर अब्बास आपका। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गंदम, कपास, कमाद, चावल, खोदनी तेल और दीगर बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। ये कमेटी बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए माहिरीन की आरा पर मबनी सिफारिशात पेश करेगी। इस्लामाबाद में वजारत तिजारत की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को ज़रूरी बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान में मौजूद खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को फ़ाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मलेशिया को पाकिस्तानी चावल की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के सरहदी अजला के लिए रोज़गार के पायदार मौक़े पैदा करने के लिए फ़ौरी इक़दामात की भी हिदायत की। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि रूस के साथ वाटर ट्रेड के तहत ज़रूरी अजनास की तजारत के लिए 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में माशी सूरत हाल और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में से एक है। इजलास को बताया गया कि FBR की वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन से मुतालिक तमाम काम मार्च 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के हवाले से डिज़ाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़ज़ाना की काविशों को सराहा। स्मगल शुदा ईंधन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमायाँ कमी की वजह से पाकिस्तान की पेट्रोलियम की फ़रोख्त गुज़श्ता माह में 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर 15,80,000 टन रही, जो इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कारोबारी इदारों को दिवालिया होने से बचाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम करना होगा। कर्ज़ों की फराहमी के लिए मौसर और पायदार निज़ाम बहुत ज़रूरी है।
कर्ज के मामलात पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मालियाती मसाइल का हल मुनज़्ज़म और देरपा होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कर्ज दहिंदगान की अदायगी की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम करें। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि मईशत में कारोबारी इस्लाहात की ज़रूरत रहती है। कर्ज की वसूली के साथ साथ कर्ज दहिंदगान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको देते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की शराकत दारी वक्त के साथ साथ मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत ने हर मुमकिन ताउन के अज़्म का अदा करते हुए पाकिस्तान की मईशत की मदद के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर के डिपॉजिट में 1 साल की तोसी कर दी है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। ये फैसला सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी तरक्की और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए जारी हिमायत को ज़ाहिर करता है। डिपॉजिट में तोसी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात की भी अक्कास है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गौर हुआ। अस्करी क़यादत ने हालिया दिनों में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 2 रोजा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जामे तज्जिया किया। फोरम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की एमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़्म किया। फोरम ने दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फ्राहम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तायुनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। अस्करी क़यादत ने कहा कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज सियासी अनासिर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। फोरम का कहना था कि ये जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम, गैर अखलाकी, आजादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन व जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। फोरम ने कहा कि सियासी व माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। पाक फौज तमाम अंदरूनी व बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। अस्करी क़यादत ने कहा कि जाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दों बिलखुसूस फितना अल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेक इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि बाहिमी तरक्की और फायदे के हसूल पर तवज्जो मरकूज करना दोनों पड़ोसी इस्लामी ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। अस्करी क़यादत ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात करने की जरूरत है। फोरम ने इस अज़म का इयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से डटे रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमतों की तरफ से शुरू की जाने वाली तमाम समाजी व इक़्तिसादी तरक्याती कोशिशों की हिमायत जारी रखी जाएगी। फोरम ने इक़्तिसादी तरक्की को फरोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया।
फोरम के शुरका ने शोहदा के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। अस्करी क़यादत ने अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फोरम ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पुरजोर मजम्मत की। फोरम ने कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा भी किया। अस्करी क़यादत ने फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए गजा में जारी फौजी जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इक़दामात की भी हिमायत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज के गैर मुतजलजल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। अस्करी क़यादत को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मुद्दत से पहले प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने के लिए खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल का मुस्तकिल हल हो सकेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इससे इस्लामाबाद के अलावा दीगर शहरों के लोगों को भी आमद और रफ्त में सहूलत मिलेगी। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपास, राब्ता सड़कें बन रही हैं। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की तामीराती काम के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने मुलाकात की और मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के साथ साथ पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। तरक्की, खुशहाली और वतन अजीज़ को मुस्तहकम करना हमारी पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। माशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान ही अक़वाम आलम में इज़्ज़त व वक़ार के साथ आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इंतशार और खलिफशार की सियासत मुल्क दुश्मनी है और हम किसी तौर पर भी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और जिक्र यहाँ पर करेंगे कौम के एक बहादुर सपूत का। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। जुर्रत और बहादुरी का इस्तियारा बनने वाले मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात के गांव कुंजाह में पैदा हुए। मेजर शबीर के यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमाए किराम ने शहीद के बुलंदी दरजात के लिए खुसूसी दुआएं कराईं। मेजर शबीर शरीफ ने 1964 में कमीशन हासिल किया और दौरान तरबियत एजाज़ शमशीर हासिल किया। वो वाहिद फ़ौजी जवान हैं जिन्हें 2 बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर और सितारा जुर्रत अता किए गए। 3 दिसंबर 1971 में मेजर शबीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के बिलमुकाबिल दुश्मन की हदूद में वाक़ एक बुलंद टीले पर कब्जा करने का हुक्म मिला। आप अपने साथियों की रहनुमाई करते हुए दुश्मन की बारूदी सुरंगों को अबूर करके मुसलसल आग बरसाती आर्टिलरी और मशीन गनों के फायर के दरमियान समूना नहर के पार जा पहुँचे। इस दलेराना हमले में आपने 43 भारतीय फौजियों को हलाक, 38 को जंगी कैदी और 4 टैंक तबाह कर दिए। 6 दिसंबर को मेजर शबीर शरीफ अपने मतलूबा हदफ के हसूल और पै दर पै हमलों को नाकाम बनाते हुए बिल आखिर मेजर शबीर शरीफ एक भारतीय टैंक के गोले का निशाना बनकर शहादत के आला मकाम पर फाइज हुए। आपकी इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा। जंग 1971 के हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने कौम के बहादुर बेटे को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। मेजर शबीर शरीफ शहीद की गैर मामूली जुर्रत, गैर मुतज़लज़ल लगन और अजीम कुर्बानी हुब्बुल वतनी और अस्करी महारत के आला तरीन नजरियात की मजहर है। आपने 6 दिसंबर को दुश्मन के मुसलसल हमलों को इंतहाई बहादुरी से पसपा किया। अर्ज़ पाक का दिफा करते हुए मेजर शबीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक के गोले का निशाना बनकर जाम शहादत नोश किया। एक शुक्रगुजार कौम के तौर पर हम अपने इन बहादुर हीरोज़ को
खिराज अकीदत पेश करते हैं। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत के मौके पर लाहौर में उनके मज़ार पर फूल चढ़ाने की तकरीब हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में शहीद की हमशीरा नजमी आपा और करीबी रिश्तेदार समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर को 53वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 1971 में दुश्मन का जवामर्दी से मुकाबला किया। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद जैसे बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने मातृ वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। सदर ममलकत ने कहा कि पूरी कौम मेजर शबीर शरीफ को वतन की कुर्बानी और बहादुरी पर सलाम पेश करती है। कौम तमाम शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है और इन्हें फरामोश नहीं करेगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मेजर शबीर शरीफ के लिए उन्होंने बुलंदी दर्जात की दुआ भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के 53वें यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शहीद जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे, जिन्होंने जंग 71 में सलमान की में दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ताकत के नशे में चूर अपनी अददी बर्तरी के बावजूद दुश्मन मेजर शबीर शरीफ शहीद की मौसर मुदाफ़त का मुकाबला न कर सका। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर ने मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश किया, जो दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग न करने का जज्बा नौजवान नस्ल के लिए काबिल तक़लीद है। मुझ समेत पूरी कौम को शहीद पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की गयूर कौम दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। मेजर शबीर शरीफ शहीद की फ़र्ज शनासी और वतन से वफादारी की मिसाल रहती दुनिया तक आइंदा नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तालीम का माशरे की तरक्की में अहम किरदार है। तालीम याफ्ता नौजवान ही कौमी तामीर के अमल में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में तकरीब से खिताब में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एडवर्ड्स कॉलेज जैसे इदारे मयारी तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्क की तरक्की में नौजवानों की फ़ाल शमूलियत ज़रूरी है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। नई नस्ल ने ही मुल्क की बागडोर संभालनी है। हमारी हुकूमत की पॉलिसी नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई करना है। ये कहना था वफाकी वजीर अमीर मकाम का, जो पाकिस्तान स्काउट्स कैडेट कॉलेज बटरासी मानसहरा में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अमीर मकाम ने कहा कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल से गुरेज करें और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। इस मौके पर यादगार कारगिल शहदा पर फातह खानी और वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआ की गई। वफाकी वज़ीर ने तकरीब में 2024 का चैम्पियन परचम का खान हाउस को पेश किया और शानदार कारकर्दगी पर कैडेट्स की मेहनत और लगन को सराहा। कॉफ़ी तुर्किया सकाफत का एक अहम हिस्सा है, जो दुनिया भर में टर्किश कॉफ़ी के नाम से मशहूर है। तुर्किया के यौम कॉफ़ी की मुनासबत से PTV इस्लामाबाद सेंटर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिर ने टर्किश कॉफ़ी को न सिर्फ पसंद किया बल्कि PTV में इसे हर साल मनाने का भी ऐलान किया। तुर्किश कॉफी डे पर पाकिस्तान टेलीविजन में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस कॉफी को ट्राई करने के लिए पहुंचे। वज़ीर इत्तलात को ये कॉफी इस कदर पसंद आई कि उन्होंने हर साल PTV में ये कॉफी का दिन मनाने का ऐलान कर दिया और आज तो तुर्किश कॉफी डे भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन ने खास तौर पर तुर्किश कॉफी का एहतमाम किया। What Pak-Turk friendship means to us, it is unique in nature, it is deep-rooted not only in history but in culture and religion. It's become an integral part of our lives, and we would like to express our gratitude to you for all that Turkey has done over the years for Pakistan. And today we stand here as brothers to take this friendship forward and to bestow upon the future generations. तुर्किश कॉफी को रवायती तरीकों, खास कप, बगैर चीनी और कई मराहिल से गुजार कर तैयार किया जाता है। The coffee is a very strong part of Turkish culture.
coffee with someone, it's special relations, not like other drinks. So you must respect each other, you must take care of each other for many years. हमारे पाकिस्तान और तुर्की के कल्चरल ताल्लुकात बहुत रवाबत भी है, कल्चरल ताल्लुकात भी है, हमारे एक दूसरे से बहुत नज़दीक है हम लोग, और ये हम चाहते हैं कि जो यहाँ नहीं है उसको पाकिस्तान में तारफ़ कराएं. हम लोग नहीं जानते, तुर्क लोग आमतौर पर नहीं जानते, उनको तुर्की में, यानी दोनों के दरमियान में ब्रिज होने की कोशिश कर रहे हैं. सेक्रेटरी इत्तलात और एमडी पीटीवी अमरीन जान का कहना था कि कॉफी तो मिल बैठने का एक बहाना था और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऐसे ही खूबसूरत लम्हात के साथ मजबूत से मजबूत तर होते रहें. इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटीवी दानियाल किलानी, डायरेक्टर न्यूज हारून इलाही तूर और जीएम पीटीवी न्यूज सेंटर आमिर बशीर भी मौजूद थे. मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद. सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात पर मजीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. ये मुल्ज़िमान सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और झूठा बयानिया फैला रहे थे. कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंदों में मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान, तारिक जमील, सैयद रिजवान, मोहम्मद अहमद और बाबर अजीम शामिल हैं. मुल्ज़िमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक्स अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे. मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. गुज़श्ता रोज़ 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनकी शनाख्त कर ली गई है. वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए. हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया और अदालतों से भागे नहीं. कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश है कि जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें. जजेस किसी के कहने पर नहीं चलते. बानी पीटीआई को अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए. सूबाई वज़ीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बुलाई गई एपीसी में पीटीआई का शिरकत न करना अफसोसनाक है. सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ने की बजाय वफाक के खिलाफ लश्कर कशी कर रही है. उनका ये भी कहना था कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि पूरा मुल्क उनके कहने पर चले. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह वफाक पर हमलावर होना है. और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान में बेहतरी से इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी आई है. कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने कहा कि हमें तवानाई के बहरान से निपटने के लिए थरकोल से पैदावार बढ़ाना होगी, जिसके लिए ज़राए भी मौजूद हैं. यहाँ से पैदा होने वाली बिजली सस्ती भी है. सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत पानी के मनसूबे पर अपने वसाइल भी खर्च कर रही है. पानी का K4 का मंसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ है. पीटीआई के दौर में K4 के फंड रोके गए. बन्नू में पाक फौज के ताउन से उलमा इकराम की ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद हुआ. अमन जरगे में फितना अल खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया गया. शुरका ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और उनके शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया. शुरका ने मुतफ़क्का तौर पर फितना अल खारिज और शरपसंद अनासिर की रोकथाम और इस सिलसिले में हुकाम के साथ ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई. मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगा में शिरकत की. उलमा और मशाइख ने इलाके में तालीम, सेहत, खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से की जाने वाली काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया. पश्तून कम्युनिटी के इस्लामाबाद पुलिस पर एतमाद ने सोशल मीडिया की झूठी मुहिम को बेनकाब कर दिया है. इस्लामाबाद में रहने वाले पश्तूनों ने इस्लामाबाद पुलिस के हक में बयान देते हुए कहा कि वो इस्लामाबाद में तवील अरसे से मुकीम हैं और मेहनत मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं. वो किसी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं हुए, इसलिए पुलिस ने किसी तरह से भी उन्हें तंग नहीं किया. इस्लामाबाद पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ झूठी मुहिम फैलाई जा रही है. पश्तूनों के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतालिक ऐसी खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं. मेरा नाम मरजान ज़मान है और मैं इस्लामाबाद की रहायशी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पठान हूँ. मैं पिछले 15 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ. मैं किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे पुलिस ने किसी भी चीज़ में तंग नहीं किया और मैं पुरअमन इस्लामाबाद में रह रहा हूँ. मेरा नाम बख्तार है, मैं दूर से ताल्लुक़ रखता हूँ. मैं पठान हूँ और मैं आया हूँ कनापुर में, इस्लामाबाद में सब्जी फ्रूट का काम करता हूँ. 1 साल हो गया मेरा इधर काम करता हूँ. अभी तक मैं पुलिस वाला नहीं तंग किया, कुछ भी नहीं किया. मैं इस्लामाबाद में 24 साल से काम करता हूँ. किसी पुलिस वाले ने सर मैं तंग नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सरकार रवान दे सर तकरीबन 40-50 कर लगे है. बाकी टोल मिक्स थी, सदा बलूचिस्तान थी, सदा पंजाब थी. ډېر خوشاله په اسلام آباد کې الحمدلله موږ سره پولیس والا ډېر ښه کوي.
उनका हर रकम ताउन रखे। मेरा नाम मुर्तज़ा खान है और मेरा मुस्तकिल पता KPK मुमंद एजेंसी है और मैं तकरीबन मेरा कुछ 40 साल से पिंडी में रह रहे हैं। तो पिछले दिनों में जो एहतजाज हुए हैं उस वजह से पुलिस वालों ने मुझे कुछ नहीं बोला, ना तंग किया ना हरासा किया मुझे। इस्लामाबाद में 4-5 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने ये नहीं बोला कि आप पठान है या किधर से आए। ये पाकिस्तानी है, बेगरू हुआ, इसमें कोई खून पंजाबी का कोई ये सब लफ्ज़ नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कुछ बोला है कि आप पठान है, चले आपको हम पकड़ लें। مردان اوسیدونکي هم پوښښ ولې او ان شاء الله مونږ داسې سکه مولویس نه یو د پولیس مونږ سره تعاون دی دلته کې اسلام آباد کې مونږ تر اوسه پورې څه داسې غیر قانوني نه یو چت کړي یا سکه مولویس هم نه یو. گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاص کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں کچھ لوگ اپنے مضموم مقاصد کی خاطر تفریق پھیلا رہے ہیں اور ایک خاص صوبے کو اور ایک خاص لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ پختون جو ہے ان کو اسلام آباد میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اسلام آباد پولیس میں ایک بڑی تعداد پختون کی بھرتی ہے جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی جو آبادی ہے اس میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ پختونوں کی ہے. گزشتہ ماہ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے آنے والے PTI کارکنوں کے شکار ہیڈ کانسٹیبل یاسر محمود نے کہا ہے کہ مظاہرے میں شامل شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے متعدد شدید زخمی ہو گئے. کانسٹیبل یاسر کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کے حملے میں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. میرا نام یاسر محمود ہے اور بطور ہیڈ کانسٹیبل تھانہ حضور میں تعینات ہوں. 24 نومبر کو لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کے سلسلے میں میری ڈیوٹی غازی پور تھانہ پل پر تھی. رات کو مظاہرین نے ہم پر حملہ کیا اور ہیوی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے پل سے کنٹینرز اٹھائے اور شیلنگ اور پتھراؤ کرتے ہوئے ہماری طرف آئے. شدید شیلنگ کی وجہ سے اور پتھراؤ کی وجہ سے میری حالت غیر ہو گئی اور میں مظاہرین کے قابو آ گیا جس پر انہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور مجھے پل سے نیچے گرا دیا. نیچے سڑک روڈ پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا. مجھے ریسکیو کر کے اسپتال شفٹ کیا گیا. ہوش میں آنے پر معلوم ہوا کہ میرے بازو اور کولے کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے. میں ابھی تک چلنے پھرنے سے قاصر ہوں. DPO صاحب کے تعاون سے میرا علاج جاری ہے. انشاءاللہ جلد سے یاب ہو کر میں اسی جذبے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا. سیکیورٹی فورسز نے سراروگا اور لکی مروت میں 2 مختلف کارروائیوں میں 8 خوارج دہشت گرد ہلاک کر دیا ہے. ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن میں خارج کے سرغنہ خان محمد عرف خورائے سمیت 2 خارج جہنم واصل ہوئے جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا. انتہائی مطلوب خارجی خان محمد خورائے کے سر کی قیمت 10 لاکھ مقرر تھی اور وہ علاقے میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا. لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک اور آپریشن میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارج کو جہنم واصل کیا گیا. علاقے میں مزید خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے ضلع جنوبی وزیرستان اور ضلع لکی مروت میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف 2 مختلف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ ہے. مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. غزہ کے مختلف علاقوں پر رات بھر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے کمال عدوان ہسپتال پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے جس سے طبی عملے اور مریضوں سمیت کئی افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ہسپتال میں افراتفری ہے اور ڈاکٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حملوں کی وجہ سے طبی عملہ اور مریض محصور ہو کر رہ گئے ہیں. جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں قابض فورسز کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا کارکن بھی شہید ہو گیا. مغربی کنارے کے علاقے نابلوس میں قابض فوج نے گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران فائرنگ کر کے 1 فلسطینی شہری کو شہید کر دیا. تل کرم میں چھاپوں کے دوران 4 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا. انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ شدید سرد موسم اور پھر مسلسل بمباری نے بے گھر فلسطینیوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ بے گھر فلسطینیوں کی قابل رحم حالت پر عالمی برادری فوری طور پر توجہ دے.
मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि शाम में बाकी जंगजू हमा शहर में दाखिल हो गए हैं। शाम में इंसानी हकूक़ की निगरानी करने वाली तंजीम ने कहा है कि हयात तहरीर शाम और इत्तेहादी धड़े हमा शहर में दाखिल हो गए हैं और कई इलाकों में उनकी सरकारी फ़ौज के साथ झड़पें जारी हैं। बागियों ने कहा है कि उन्होंने हमा की जेल पर कब्जा कर लिया है और सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ हमा शहर के शिमाल और मशरिक में मुसल्लह गिरोहों की शामी फ़ौज के साथ शदीद झड़पें हुई। इसी दौरान शामी फ़ौज को रूसी फ़िज़ाइया की मदद हासिल थी। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बागियों ने शाम के दूसरे बड़े शहर हल्ब पर कब्जा किया और अब हमा पर कब्जा कर लिया है, जो मुल्क का चौथा बड़ा शहर है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया सदर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा कि शाम के तनाज़े का नया मरहला यकसुई के साथ तय किया जा रहा है। एर्दोआन ने गुतेरेस से बातचीत में कहा कि शामी हुकूमत को मसले के सियासी और मुज़ाकराती हल के लिए अपोजिशन के साथ फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्किया शाम में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली मज़ीद 35 कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके पैसा जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारी पर लगा रहा है। अमरीकी महकमे खजाना की तजवीज़ पर मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट होने वाली शैडो ईरानी कंपनीज पर पाबंदी से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया गया है। दहशत गर्दी और मालियाती इंटेलिजेंस के महकमे कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ब्रॉडली स्मिथ ने कहा है कि अमरीका गैर कानूनी ऑपरेशंस में मुलव्विस शैडो फ्लैट्स और वेसल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है और ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जाएंगे। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि तेहरान तवील अरसे से दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहा है। ईरान अपनी तखरीबी सरगर्मियां बंद करे। वेदांत पटेल ने यह भी कहा कि ईरान इंसानी हुकूक की पासदारी करते हुए गैर कानूनी जेर हिरासत कैदियों को रिहा करे। यहाँ पर खबर आपको देते हैं मकबूजा कश्मीर से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी हुकूमत की तरफ से बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी, अमलाक की जब्तगी, मुलाजमीन की बरतरफी और जबरो इस्तबदाद की दीगर कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में इन कार्रवाइयों को कश्मीरियों को दबाने, इख्तिलाफ राय को कुचलने और लोगों के बुनियादी हकूक़ को मजरूह करने की मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत के नारवा इक़दामात की वजह से मकबूजा इलाके में खौफ व हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पाया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि मुसलमान आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। इंतहा पसंदों ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया, जिसके खिलाफ मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मज़ाहमत की गई। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर में एजुकेशनल गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद तालीमी इदारों ने हिस्सा लिया। एजुकेशनल गाला में भरपूर शरीक होकर हर शोबा फ़िक्र के लोगों ने इवेंट में रंग भर दिए। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले गाला में आर्ट कॉर्निवॉल को बड़ी पजीराई मिली, जिसमें बच्चों ने अपने फ़न का खूब मुजाहरा किया। मौसमियाती तब्दीली से आगाही और ग्रीन गवादर गाला का मरकजी मौजू रहा। किताब घर मेला और बच्चों की भरपूर शिरकत गाला की रौनक बने रहे। और मैं ग्वादर स्कूल ऑफ आर्ट्स की चेयरपर्सन हूँ। आज यहाँ ग्वादर में सेकेंड एजुकेशनल गाला हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे वॉल आर्ट हो रही है, लाइव पेंटिंग कंपटीशन है, पेंटिंग्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्राफ्ट के, फूड स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स और बहुत कुछ। और यहाँ पे स्टेज में परफॉर्मेंस, टेबलो, और ये 3 दिन तक चलेगा, 2, 3, 4 दिसंबर तक GDA मॉडल पार्क में। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एजुकेशन गाला है और हमने पार्टिसिपेट किया है साइंस मॉडल, वर्किंग मॉडल में। हमने जो है पॉल्यूशन के हवाले से मॉडल बनाया है और सुनामी के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमने बहुत मेहनत करके अपने मॉडल्स बनाए। हम चाहते हैं कि ऐसे जो है प्रोग्राम्स और ज़्यादा हों ताकि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एजुकेशन गाला में पार्टिसिपेट किया है।
اس طرح کے ایجوکیشن گالا اور ایجوکیشن ایونٹ چاہیے کہ گوادر میں ہر سال ہونے چاہیے. انوائرمنٹ یہاں کا بہت اچھا ہے اور ہم بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. یہاں پر ایجوکیشن گالا 2024 کے اندر ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم اپنا سائنسی پروجیکٹ یہاں پر پیش کریں اور ہم نے واٹر فلٹریشن اینڈ راکٹ یا میزائل کا پروجیکٹ بنایا ہے. ہاں ایجوکیشن کے لحاظ سے ایسے تیار کیا ہے تو ایسے اور پروگرام ہوتے ہیں. آج ہم آئے ہیں گوادر ایجوکیشن گالا میں، تو یہاں آ کے ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے اچھے اسٹالز لگے ہیں، پروجیکٹس ہیں. یہ ایجوکیشن گالا ہمارے لیے بہت انفارمیٹیو ہے. گوادر میں ایک گالا ایجوکیشن گالا کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. اس میں اسٹالز لگے ہوئے ہیں جس میں پینٹنگز ہے، ڈفرینٹ جو ہے نا بکس ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جس ہم لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. بہت مزہ آیا اور سارے اسکول والوں کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. درست ہر وقت بر وقت. قوالی کے فن کو ایک نئی جہت عطا کرنے والے معروف قوال عزیز میاں کی 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. عزیز میاں قوال کے حوالے سے دیکھتے ہیں بلال شیخ کی یہ رپورٹ.
बन गया। कव्वाली के शायदा अजीज मियाँ के दीवाने हैं, जिसकी एक वजह कव्वाली का उनका मुनफरिद अंदाज और जज्ब मस्ती की वो कैफियत है जिसमें इश्क हकीकी से अकीदत और मोहब्बत झलकती है। दाऊद का सर इदरीस कदम, इदरीस का सर लूत कदम, अरे लूत का सर नूह के कदमों में और नूह का सर आदम के कदमों में, इतने सर सजदे में जाएं तब एक मोहम्मद बनता है। अल्लाह जाने मोहम्मद जाने, अल्लाह जाने। अपनी सहर अंगेज आवाज और दिल को मोह लेने वाले कव्वाली के अंदाज की बदौलत अजीज मियाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कव्वाली के शायकीन के दिलों में आज भी बसते हैं। अगरचे इस गुलशने जहां में हजारों गुल हैं, बरंगे दीगर वले के खुशबू बरूहे परवर, सदा महकता तुम्ही को देखा तेरे सिवा तनवीर मुझे। 17 अप्रैल 1942 को दिल्ली में पैदा होने वाले अजीज मियाँ कव्वाल ज्यादातर अपनी कव्वालियाँ खुद ही लिखा करते थे। अरबी, फारसी और उर्दू में मास्टर्स की डिग्री रखने वाले अजीज मियाँ को 1989 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। जिब्रील से आवाज ये प्यारी आई हो मुबारक के मोहम्मद की सवारी आई, नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया। अजीज मियाँ ने 58 साल की उम्र में इस दार फानी से कूच किया। वो मुल्तान में अपने मुर्शद के मज़ार के पहलू में सुपुर्द खाक हैं। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शुमाली इलाक़ाजात में रात के औक़ात में शदीद सर्द रहने, जबकि जनूबी पंजाब की चंद मैदानी इलाकों बालाई सिंध में हल्की धुंध छाए रहने और रात के औक़ात में खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी इलाकों में कोहर पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, करदू -9, अस्तूर, गिलगित, गोपिस, कालाम -5, हुंजा -4, कल्लात -3, चित्राल, दीर -2 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। एक गलत कदम और गेम खत्म। कश्ती से गैर कानूनी सफर का खतरा मोल लेना अपनी जिंदगी और पैसा ज़ाया करना है। ऑस्ट्रेलिया वीज़े के बगैर आने वालों को कोई वीज़ा नहीं देता है। आपको रोक दिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में आबाद नहीं होने देंगे। कोई दूसरी बारी नहीं। इंसानी स्मगलरों के हाथों कैच होकर आउट ना हो जाएं। कानूनी रास्ता ही वाहिद रास्ता है। गैर कानूनी मुंतकली का सिफर इम्कान।